Namaste. Today let's talk about why people quit meditation and how you can keep going. You know, many people shared with us that they have tried meditation a few times earlier but just couldn't continue the practice. So in today's video we will share with you some very effective tips on how you can make meditation a part of your life and avoid quitting it. देखिए बहुत से लोगों ने हमारे साथ बांटा कि ध्यान उन्होंने पहले भी ट्राई किया है, करना शुरू भी किया पर उसे लगातार नहीं कर पाए, कहीं छूट गया। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या वो वजह हैं कई बार जिनसे ध्यान या कोई भी अच्छी आदत हमारे जीवन से छूट जाती है और कैसे हम उसे ना छोड़ें। क्या वो टिप्स हैं जिनको अगर हम पालन करेंगे तो हम ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। And the last point in this video is the main reason why you might quit this practice in the future. So I want you to watch the video till the end. जो पांचवा पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। You know, the first thing we need to understand is that if you miss one day, it's okay. But don't miss 2 days in a row. You know, what happens is if you miss meditating at your regular time, suppose you have decided morning 7 a.m. I will meditate. By chance some emergency happens or you got up late or something happens and you miss it at that time, then sometimes we end up missing it for the whole day. This is what we need to avoid. See, I understand life takes over, you get busy, you have guests at home or maybe children had exams and you forgot about doing meditation. It's all right. But don't quit because you missed one day. Show up again the next day. This is very important. देखिए कई बार हम क्या करते हैं, आपने एक समय निर्धारित किया था कि हाँ मैं इस समय रोज़ ध्यान करूँगी और किसी वजह से उस समय पे छूट गया, तो हम क्या करते हैं वो दिन ही पूरा छोड़ देते हैं, है ना। और चलिए एक दिन छूट गया तो फिर हम उस ध्यान को ही छोड़ देते हैं। ये हमें नहीं करना है। ठीक है, एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं, अगले दिन से फिर से शुरू कीजिए, है ना। 2 दिन कभी एक बार में मिस ना होने दें, ये बहुत ज़रूरी है। Second, I would say connect your meditation with an activity which you don't miss. You don't miss meals, right? So you can take this commitment. I will eat food once I have meditated. दूसरा एक तरीका है कि ध्यान को किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ दीजिए जो आप रोज़ करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे भोजन हम रोज़ करते हैं, चाहे कितने भी बिजी हों, हम खाना तो खाते हैं, है ना। तो ध्यान को उसके साथ जोड़ देना, एक ऐसा निश्चय करना कि ठीक है चलो अगले एक हफ्ते तक मैं भोजन तभी करूँगा जब मैंने ध्यान कर लिया। See, we get busy, sometimes we are traveling, or maybe you just have a bad mood. Any of this could become a reason to quit meditation. But remember, meditation helps you be more effective, focused, and also it turns around your frown into a smile. So if you're having a bad day, that's the reason why you should meditate that day. You know, let your meditation power your day. देखिए छोटी छोटी वजह से कई बार हम ध्यान को छोड़ देते हैं कि आज प्रवास में हैं, कहीं जा रहे हैं या बहुत बिजी हैं या फिर आज मूड अच्छा नहीं है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। तो वही वजह है कि हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान तो हम हर जगह कर सकते हैं, एक फ़्लाइट में बैठकर भी आप ध्यान कर सकते हैं, है ना। जब हम एक्सक्यूज़ को रीज़न बना लें है ना, बिज़ी हैं इसीलिए ध्यान करना है ताकि और ऊर्जा मिले और हम अच्छे से अपना काम कर पाएँ। मूड अच्छा नहीं है इसीलिए ध्यान करना है ताकि मूड अच्छा हो जाए। ध्यान वो है जो आपके पूरे दिन को ऊर्जा देता है, आपकी हर चीज़ को बेहतर करता है, तो ज़रूर छोड़े नहीं। Another reason could be that you're not feeling well, you know, physically we are not well. Well, you know, meditation will only help you feel better. You know, remember, a strong mind can carry a weak body, but a weak mind cannot even carry a strong mind. है ना। जब हमारी तबीयत ख़राब होती है, ये भी एक वजह बन जाती है। हम सोचते हैं आज बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, इतनी ऊर्जा ही नहीं है कि हम बैठ के कुछ प्राणायाम करें, ध्यान करें। याद रखिए, जब एक मन सशक्त होता है वो एक कमज़ोर शरीर को भी खींच लेता है, पर अगर मन ही कमज़ोर हो तो एक सशक्त शरीर भी किसी काम का नहीं रहता। ध्यान हमारे शरीर और मन दोनों को सशक्त बनाता है, तो ध्यान हर दिन करना है। और sometimes, you know, this is the fifth common reason why people quit meditation is because they feel it's not working for them. They feel it's very hard or, you know, I'm not seeing a change. This could become a reason. It's like going to the gym for a few days and saying, where are my six-pack abs?
That's not how it works. The effects of meditation compound with time. The practice deepens with time. देखिए, पांचवा और सबसे ज़्यादा पाया गया जो एक वजह है जिसकी वजह से लोग ध्यान करना छोड़ते हैं, वो क्या है? उन्हें लगता है ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा, या ये बहुत कठिन है, या मुझसे नहीं होगा। ये ऐसा है माने आपने अभी अभी व्यायाम शुरू किया, कुछ ही दिन हुए हैं, 5-6 दिन हुए हैं, और आप बोल रहे हैं कहाँ है मेरी मसल्स, क्यों नहीं अभी तक आई? समय लगता है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे, जो असर है ध्यान का वो और दृढ़ होता चला जाएगा और बड़ा होता चला जाएगा। राइट? यू नो, द आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम्स विल हेल्प सपोर्ट यू with the right guidance and community to go forward in this journey of self care. जब साथ में एक ग्रुप जुड़ा हो, जब एक टीचर आपको सही से सिखा रहे हो, तो ये सब आसान हो जाता है। इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स, जो कोर्सेज हैं हमारे, साथ ही में जो एक ग्रुप है, कम्युनिटी है, उसके साथ जब आप जुड़ते हैं तो सही निर्देश के साथ, सही वातावरण में आप इस यात्रा में और आगे बढ़ पाते हैं। All the important links for our programs and our upcoming online challenges are in the description. So take the first step in your meditation journey and we are here to support you. सभी लिंक, सभी जानकारी डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर पढ़िएगा, और हमारे आगे आने वाले प्रोग्राम्स और चैलेंजेस की भी जानकारी उधर ही है, तो अपना पहला कदम ज़रूर उठाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। If you found this relatable and useful, do remember to like, share and subscribe. Namaste.